Namaste. This is Vinay Sahasrabuddhe, President, Indian Council for Cultural Relations, and today we are hosting Shri Manjeet Gill, one of the very renowned experts in Indian culinary and cuisine traditions, himself a chef, a very renowned and decorated chef, and somebody who is an authority insofar as Indian culinary and cuisine traditions are concerned. I would tell more about him, but to look back, we met in this kind of a podcast about a month before, and which we have rightly named as Connecting Through Culture. As many of you are aware that ICCR came out with this publication, which is an anthology of several dimensions of India's global cultural relations, or what they call as soft power. And as a matter of connecting through culture, we have to look into various ways and means of our connections with the global community. And one of them is our culinary and cuisine traditions. As the viewers would recall, last time we met with Shri Amar Hassan, a Syrian person, a young Syrian researcher who has done translations of Mirabai's bhajans and other literature as well into Arabic, and who has become kind of a practitioner of Indian spiritual traditions, having made India his second home kind of. And therefore, after Amar Hassan, this year in the month of September, we are meeting with Shri Manjeet Gill, as I said, a very renowned practitioner, not just a researcher, but and somebody who has learnt, but somebody who has been practicing Indian culinary and cuisine traditions. To give you more details, Manjeet ji, almost in his 70s, in his mid 70s, and currently he is the president of Indian Federation of Culinary Association and has been awarded for his exemplary skills a Escoffier medal, something which is very, very prestigious in this particular world of culinary and cuisine traditions. Originally, he belonged to the part of India which is now called as Pakistan, but for last almost 7-8 decades, he and his entire family, they are in India and serving the cause of Indian culinary and cuisine traditions in multiple ways. His family is that way, I would say, is the family of chefs. So they are the Annadatas, and therefore we have an Annadata amongst us who would tell us about his journey, his assessment of the prospects of Indian culinary traditions, and he would also tell us what we as citizens require to do. So Manjeet ji, बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत शुक्रिया विनय जी. Welcome to this particular podcast. And let me start with the question, because as it happens, in your world, you are definitely one of the very exceptional celebrities, I would call. But for the outer world, maybe people might have heard about you, they might have even tested your food at various occasions. But if you could tell us a little bit of your journey so far, then our viewers would be enlightened. थैंक यू वेरी मच विनय जी टू मेरे को इसमें प्रेजेंट करने के लिए. एक दो चीज़ें मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा फॉर द रिकॉर्ड. एक तो आई एम बॉर्न इन द इंडिपेंडेंट कंट्री. आई एम वेरी प्राउड टू बी. या फैमिली डेफिनेटली केम. माय फादर वाज ए INA फ्रीडम फाइटर and he was in INA who fought Second World War. दूसरा, I belong to the family of farmers, and we still do farming, but a lot of agricultural scientists in the family. In that context also you are an हाँ जी, वही मैं करने कर रहा था. पर शेफ मैंने होटल स्कूल करके शेफ मैं फर्स्ट फैमिली में. बट आफ्टर दैट मैंने देखा कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. फैमिली जो है फार्मर्स वो क्रॉप उगाते हैं और मैं उस क्रॉप को खाने में बदल के प्लेट में देता हूँ. तो हमारा रिलेशनशिप जो है, बहुत बढ़िया. क्रॉप अदरवाइज इनकम्प्लीट है फूड कंप्लीट. तो उसमें एक बड़ा अच्छा एक कम्बिनेशन बना है ये. तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब भी समझता हूँ और बड़ा अच्छा मतलब इसमें आने में बहुत प्राउड भी फील करता हूँ इसमें. और बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये, बड़ा क्रिएटिव भी है. और अब तुम्हारे को
माइंडली और बॉडीली फिट रखता है, बड़ी अच्छी चीज़ है। फ्रॉम फार्मर टू ए फूड क्यूरेटर। हाँ जी, फूड क्यूरेटर बन गए हम, तो अच्छा लगा इसको। अच्छा, दूसरा ये कि जर्नी हमारी, मैंने होटल स्कूल से ही, मेरे फादर ने मुझे एडवाइस किया था कि इट विल बी अ गुड कैरियर, तो जो मैं बीएससी कर रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया। तो उसमें मैंने देखा कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा एवोल्यूशन, मेरा जो ब्रिंगिंग अप है, वो मेरे को किचन में बहुत सूट करती है। विद मेरा बैकग्राउंड भी, मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़ा अच्छा होता था दैन एकेडमिक टू मच, बट तो उसके कारण मैंने चूज़ किया किचन को, और उसमें मेरी ट्रेनिंग, मैंने ओबराय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद तो ट्रेनिंग किचन में की, पर इंसिडेंटली किचन में ट्रेनिंग उस टाइम पे जो थी मोस्टली वेस्टर्न फूड पे ही थी, और वेस्टर्न शेफ्स के अंडर ही होती थी। तो वो एक था एक तरीका सीखने का, करने का। पर उसके जब जल्दी ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने अपने कोशिश करके मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे मैं जब इंटरनेशनल पीपल के साथ, प्रोफेशनल के साथ जब मिक्सअप हुआ और बातचीत हुई, तो वो सब मेरे से, अब मैं शेफ़ भी हूँ, और मेरा रिकग्निशन भी जो है, मेरा अटायर भी जो है बड़ा इंडियन है एकदम, पता लगता है ये इंडिया का है, ये कंफ्यूजन नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे उसमें कॉर्नेल में आप क्या पढ़ रहे थे मंजीत जी? मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में समर वेकेशन कोर्सेज करने गया था, फूड एंड बेवरेज टेक्निक्स, फूड एंड बेवरेज कंट्रोल रिलेटेड कोर्सेज करने के लिए। तो वहाँ पे हर कोई मेरे से फूड बात कर रहा है, पर इंडियन फूड के बारे में बात कर रहा है। मेरे को बोल रहे हैं कि आपको क्या, आप कभी इंडियन फूड बनाइए, दिखाइए, और मैं इग्नोरेंस मेरे को कुछ थी उस टाइम पे, हमारी ट्रेनिंग या इस तरीके से। तो मैं कहता था मुझे इंडियन फूड नहीं बनाना आता है, मुझे फ्रेंच आता है, ये आता है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल वो काइंड ऑफ फूड्स। तो उसके बाद में बातचीत में, कन्वर्सेशन में बातचीत ये होती थी कि तुमने कहाँ से सीखा, आपको फ्रेंच आती है, आपको उसके कल्चर का पता है। तो कुछ बड़े क्वेश्चन, बड़े सवाल दिमाग में आने शुरू हुए। और उसके बाद फिर लकीली मैं ओबराय से आईटीसी में ज्वाइन किया, और आईटीसी जो थी वो बड़ी इंडियन ईथोस के साथ पूरा उनका फिलॉसफी थी होटल्स रन करने का, और होटल्स भी इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन डायनेस्टीज़ के ऊपर बनते थे सारे होटल। तो इंडियन फूड के ऊपर बहुत काम शुरू था उसमें। तो वहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हुआ, और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैं बहुत खुशी किस्मत हूँ इसके लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इंडियन फूड के ऊपर काम करने के ऊपर। तो मैं स्लोली वेस्टर्न फूड से मैं आया, और मैंने इधर की तरफ ज़्यादा रुझान रखा अपना। फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी भी मिल गई टू हेड द किचन, तो मेरे पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा आ गई अपने आप को भी डेवलप करने के लिए। तो मैंने फिर इंडियन फूड को थोड़ा पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट लिया कल्चरल बुक्स में, आयुर्वेदिक्स में। तो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन में पैराग्राफिक लाइन पढ़ी मैंने कि ओरिजिनलिटी जो खाने की है वो तभी आती है, और ये लाइन हम हिंदुस्तान में बहुत समझ सकते हैं, बिकॉज हमारी डाइवर्सिटी बड़ी ज़बरदस्त है इधर, उसको हम समझते हैं डाइवर्सिटी को। तो उसमें लाइन थी कि ओरिजिनलिटी खाने की तभी आती है जब खाने का, कुजीन का ओरिजिन और बनाने वाले का, जिसको आज हम तो शेफ़ कहते हैं, अगर वो एक ही है तो, अदरवाइज उसमें ओरिजिनलिटी नहीं आ सकती। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इंडियन हूँ, और मैं वेस्टर्न फूड को अगर मैं एक्सपर्टीज़ करता हूँ तो मैं स्टिल नंबर 2 ही रहूँगा, नंबर 1 नहीं हो सकता कभी भी, बिकॉज वो मेरा कल्चर नहीं है। तो समझ आया कि कुजीन जो है वो कल्चर से रिलेटेड है। फिर उसको थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, पढ़ने लगे उसको, समझने, फिर बड़ा चीज़ें, बहुत जर्नी, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही, कि जिससे कि मेरे इतनी कमिटमेंट होगी कि मेरे को इंडियन फूड पे ही करना है। और फिर इस कंपनी, ऐसी कंपनी में मैंने काम किया जहाँ मैंने 45 साल काम किया उस कंपनी में, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और बड़ी ऑनर के साथ, और बड़े बड़े अच्छे आइकॉनिक जो इंडियन रेस्टोरेंट्स आज भी हैं, पिछले 35, 40, 45 साल से 50 साल चल रहे हैं रेस्टोरेंट्स, वो टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, और इंडियन कुजीन को बहुत ऊपर लेवल पे वो लेकर गए हैं, बेंचमार्क बन गए हैं वो। मंजीत जी विदेश में भी काम किया है? विदेश में मैं शॉर्ट बताऊँ, विदेश में डेफिनेटली गया था, इधर से ब्रेक करके काम में से अपने। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि वो देश में, मैं मिडिल ईस्ट ही गया था, कि मैं साल 2 साल में इतने पैसे कमा लूँ कि मैं कॉर्नेल से, यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ के आ सकूँ।
तो वो मेरा मकसद, थोड़ा मेहनत करके ओवर टाइम वगैरह करके मैं साल में ही पूरा करके मैं कंपनी वापस आ गया था, कोर्सेज करके पैसे सारा खर्च के। वो मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैं कंपनी में ITC वापस आ गया, मैं वैसे ही रिस्पेक्टफुली बैक। तो इस तरह ही मैंने बाकी मैंने ट्रैवल जो है वो मैंने ऑलमोस्ट अबाउट 60-65 कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है सिर्फ फूड प्रमोशंस के लिए। और लॉट ऑफ इंडियन की भी, जिस तरह बर्लिन में इंडियन ट्रैवल ब्यूरो के टाइम पे उस टाइम ये जो आपकी विदेश में कई बार जाना रहा, बहुत यात्रा बहुत रही, बहुत ज़्यादा, तो साल में आज की 2-3 बार तारीख में- बहुत ट्रैवल किया। सही सही। तो आज की तारीख में जब पूरे विश्व भर में भारतीय हमारी जो कलिनरी क्यूजीन ट्रेडिशंस है उनका जो प्रभाव है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स है, शायद ही कोई रेस्टोरेंट होगा कि जो अच्छा बिजनेस नहीं कर रहा। और हम जैसे देखते हैं कि कई जो अभारतीय है वो भी इंडियन रेस्टोरेंट नाम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो इंडियन कलिनरी क्यूजीन ट्रेडिशंस का विश्व में जो प्रभाव है, द इन्फ्लुएंस, हाउ डू यू लुक एट दैट इन्फ्लुएंस? ऐसा वीरेंद्र जी के प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है। और पर जो मेरा जो एक्सपीरियंस है बाहर का, मैंने बहुत कुकरी डेमोन्स्ट्रेशन कॉलेजेस में, डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी मैंने काफ़ी विज़िट किए हैं और गया हूँ। और पर लेकिन लोगों का ये है कि वो देखते तो हैं कुकरी को कि हम कैसे बना रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट ज़्यादा जो है वो इस कुकरी को, इस कुजीन को, इस हमारे कल्चर को समझने का है जी, कि इस कुजीन के पीछे साइंस क्या धारणा है, क्या है, इसके साइंस क्या है, इसके पीछे इसका एवोल्यूशन क्या है। वंडरफुल। ये इतना डीप, जो इतनी पुरानी हेरिटेज, अपनी लेगेसी चली आ रही है खाने की, इसके पीछे क्या है, क्यों है ऐसी। यहाँ पे स्पाइसेस हैं तो उनका यूज़ कैसे है, स्पाइसेस का क्या, तो उनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं। आप आधे पौने घंटे का कुकरी का डेमो करो, क्वेश्चन उनके 1 घंटा चलते हैं, उल्टा ब्रेक करना पड़ता है कि दूसरा शो भी। तो वो जो चीज़ है उससे क्यूरियोसिटी बड़ी होती है हमको भी, कि हम कितना ज़्यादा उसको पढ़ सकें, समझ सकें, जो आगे कम्युनिकेट कर सकें। मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं सिर्फ यही थोड़ा सा, मेरे को कभी ये दिल में आती भी है चीज़ कि अभी ये क्यों इतना हम स्लो चल रहे हैं अपना जो है ट्रम्पेट या भोंपू बताने के लिए लोगों को कि हमारा खाना क्या है। और इसका मैं ये भी समझता हूँ, जो मेरी हाइपोथेसिस हैं ये, कि हम मे भी हिंदुस्तान में हम जो फूड को जो है वो हम कहते हैं कि जो ऑल माइटी का है, कि वो हमारे ऊपर बड़ा वरदान है कि इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी चीज़ हमें दी है, और इसके पीछे साइंस को भी समझाया, आयुर्वेदा का डेवलप हुआ हज़ारों साल पहले, क्या रिलेशनशिप है बॉडी और फूड की, जो उसके ऊपर इतनी बड़ी साइंस डेवलप हुई है। तो इसको हम खुद समझ के आगे दुनिया को क्यों नहीं बता पा रहे हैं, हम पीछे क्यों रह रहे हैं, मतलब। तो और हमारे इतना खाने के ऊपर मतलब इतनी समझ है और इतना रिस्पेक्ट है, और जो चीज़ें भी आज हम देख रहे हैं दुनिया में, मैं देख रहा हूँ आज जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो रही हैं खाने के बारे में, बात करते हैं लोग, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जी, सीजनल की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। सीजन, अब ये सीजनल जो है, और इवन और लोकल फूड और सीजनल फूड की जो आज बज़वर्ड बने हुए वर्ल्ड के, बिल्कुल। ये तो हमारे आहार विरोधा में, आयुर्वेद में 17 जो आहार विरोधा इनकम्पैटिबिलिटी फूड में टॉप पे पहले 2 यही हैं। सही बात है, सही बात। तो हमने अब हम दुनिया को नहीं बता रहे हैं, दुनिया हमको बता रही है कि सीधो लोकल खाना। हम ही अपने को समझने में नाकामयाब रहे हैं एक दूसरे तो हमको अपने खाने के ऊपर, अब मेरा यही मैं चाहता हूँ कि अपने खाने को हम कल्चरली को समझें और दुनिया को बताएं। और मैं तो ये जो आयुर्वेदा को थोड़ा बहुत जो समझा हूँ, मतलब बहुत थोड़ा समझा हूँ, इतना मैं समझाऊँ जितना एक शेफ़ को या कुकिंग के लिए ज़रूरत है। मुझे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर तो बनना नहीं है, ना मैं बन सकता हूँ, पर इतनी समझ मुझे जरूर होनी चाहिए कि कुकिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, कुकिंग की गाइडलाइंस क्या हैं, कुकिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो कि हमारा रेगुलर खाना जो है एज ए हैबिचुअल ही वेलनेस के लिए बने, ना कि कोई अलग खाने को लेके। इतना आपने सही फरमाया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इंडियन कलिनरी क्यूजीन ट्रेडिशंस की एक फिलॉसफी है। जैसे भारत के हर
चीज की एक फिलॉसफी है। बिल्कुल अगर हम भरतनाट्यम करते हैं तो उसकी भी एक फिलॉसफी है। बिल्कुल अगर हम कोई संगीत प्रस्तुत करते हैं तो उसके पीछे भी एक सिद्धांत है, कोई धारणा है। तो ऐसे हमारा जो आहार है, हमारी जो आहार पद्धति है, उसके पीछे क्या सोच है, कौन सा विचार है, हाँ, क्या फिलॉसफी है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये। देखो, जो मैं समझा हूँ इस चीज़ को, तो मैंने उन चीज़ों को इकट्ठा करके भी कोशिश की है, प्रेजेंटेशन दुनिया भर में भी की है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे खाने का जो एवोल्यूशन है वो है ही दो पिलर्स के ऊपर, एक वेलनेस और एक सस्टेनेबिलिटी। बढ़िया। इन दो के ऊपर ही सारा खाने का एवोल्यूशन है। और बड़ा क्लियरली ये मेंशन आप समझते हैं उस चीज़ के अंदर कि क्लाइमेट की जो बात आज भी हो रही है, बड़ा क्लियर लिखा है, इफ़ फूड इज़ नॉट इन हारमोनी विद इन नेचर, इट इज़ नॉट फूड। करेक्ट। बड़ी सिंपल सा लाइन है ये, लेकिन इसका मीनिंग बहुत फिलोसफिकल और बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि आज दुनिया इसके, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारी जो इंडियन गैस्ट्रोनॉमिक साइंस जो है, ये पहले जब लिखी गई तो ठीक थी, तभी लिखी गई, ये डॉक्यूमेंट हुई, मिडीवियल टाइम में भी ठीक थी, आज भी ठीक है, और फ्यूचर भी यही है। अगर हम इसको समझ के और आजकल के हिसाब से उसको समझा सके तो फ्यूचर यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और इतनी ज़बरदस्त, अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज़ इंडियन फूड, अब मेरा इंडियन फूड को एक्सप्लेन करने का मतलब तरीका यही है कि हमारी एक सोच है, साइंस है, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल गाइडलाइंस है उसकी, उसको नज़र रखते हुए जो हम खाना बनाते हैं वो इंडियन फूड है। अगर वो इंडियन फूड का हमारा टेस्ट अलग है, हमारी चीज़ों को के लोकल फ्लोरा फोना के हिसाब से बनाते हैं और यहाँ की स्पाइसेस मिला के जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप इन फंडामेंटल्स आयुर्वेदिक को फॉलो करके दुनिया के किसी भी हिस्से में खाना बनाएंगे, वो उनके टेस्ट का होगा, लेकिन आयुर्वेदिक फूड है, इंडियन फूड है, मतलब वेलनेस जो वेलनेस के ऊपर और फूड है। सस्टेनेबिलिटी, तो इतनी इन पिलर्स को बरकरार रखते हुए आप उस देश के लिए अनुकूल खाना भारतीय शैली का बना सकते बिल्कुल बिल्कुल, तो इतनी जबरदस्त ताकत है, बिकॉज साइंस तो साइंस है, फैक्ट है ये। अब वो किसी, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीके से आ रही हैं दुनिया से, लेकिन हम देखते हैं वो तो हमारे पास है ये सब चीज़ें। वैसे एक अलग सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि आपने भारतीय हमारी जो खाद्य परंपरा है, आहार शैली है, उसका जिक्र किया। अभी भारतीय परंपरा में पंजाबी भी है, दक्षिण भारतीय भी है, बंगाल का अपना है, राजस्थान का है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। क्या आपने सारे प्रदेशों के खाने बनाए हैं कभी? लगभग। मैं बना लेता हूँ, अच्छा। लेकिन मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता अभी, जी जी, नहीं क्योंकि तो वो एक अलग मेरा बात है। उस कल्चर से मेरा एवोल्यूशन नहीं हुआ, मैं किसी दूसरे कल्चर में हुआ हूँ। लेकिन जो नहीं विनय जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपने की, बड़ी अच्छी बात, कि जो जब हम कहते हैं ना कि अब हम चाहे वो आपने बंगाल बोला, उड़ीसा बोला, तमिलनाडु, ये हमारी जो भी रीजन्स हैं, जहाँ स्टेट्स जो भी हैं, हमारा डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन हम इंडिया में रह के हम ये नहीं कहते कि ये बंगाली फूड है, इंडियन फूड नहीं है, जी जी जी, ये सब पंजाबी इंडियन ही फूड है, इंडियन नहीं है। जिस तरह आप यूरोप में चले जाते हैं, मान लो चाहे वो यूरोप है, लेकिन ये फ्रेंच फूड है, जर्मन फूड है, इटालियन फूड है, दे नोन विद देयर ओन कल्चर एंड ऑल दैट। हम लोग डाइवर्स हैं, लेकिन हमारी जो फिलॉसफी है, वो एक है। हमारा जो फंडामेंटल है, बिल्कुल। वो एक समान ही है। बिल्कुल। इसीलिए वो फिलॉसफी के कारण, बहुत बढ़िया। और फिलॉसफी के नीचे फिर जो लिखा गया है, इसीलिए कि दिस इज द फिलॉसफी, दिस इज द वे, दिस इज द साइंस, नाउ कुक अकॉर्डिंग टू योर लोकल फ्लोरा एंड फौना एंड क्लाइमेट। वंडरफुल। वहाँ पे खाना हमारा अब डाइवर्स हो गया। जैसा फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़, एक जो बेसिक चीज़ कुकिंग के अंदर है वो मीडियम ऑफ कुकिंग है, मान लो वही है बेसिक चीज़, उसके बाद चीज़ें जो भी हैं वो अब नॉर्थ में हम घी को कुकिंग में बहुत इस्तेमाल करते हैं, हालांकि घी जो है वो कॉमन है पूरी इंडिया में, लेकिन यहाँ कुकिंग में ज़्यादा होता है। साउथ में कोकोनट ऑयल और तिल का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन घी का एक चम्मच ऊपर डालते हैं, अलग चीज़ है, हाँ वो तो बात है। पर लेकिन उनका मीडियम और है।
आप वेस्ट में, आपके एरिया में, महाराष्ट्र में मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है। आप ईस्ट में चले जाएंगे तो सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। तो मीडियम कुकिंग देखो कितना डाइवर्स है। बिल्कुल। तो ये हमारी डाइवर्स फूड है, क्रिएटिविटी है, और हमारी लोकल फ्लोरा फोना की इम्पोर्टेंस जो हम देते हैं। तो ऊपर अम्ब्रेला एक होने के कारण ये सारा इंडियन डाइवर्स फूड कहलाता है, ना कि रीजनल हम बोलते हैं। तो वो जो हमारी फिलॉसफी है और जो हमारी साइंस है, उसको जो है हमने पूरी दुनिया को बताना है, और पूरी दुनिया ही इसी फिलॉसफी के अंडर आ जाएगी एक दिन, बहुत फॉलो करेगी। बहुत बुनियादी ये हमारी बात सॉफ्ट आपने- पावर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुनियादी बात आपने कही। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हम भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के तत्वावधान में इस साल से दीपावली के आसपास हम एक अन्नपूर्णा सर्टिफिकेशन योजना प्रकट रूप में उस पर अमल करने वाले हैं, उसको अनाउंस भी कर रहे हैं। और उसमें जो भारतीय रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जो भारत के पदार्थ, भारत की आहार शैली विश्व तक पहुंचा रहे हैं, एक दृष्टि से भारत की सौम्य संपदा में अपना योगदान दे रहे हैं, सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं, हमारे के प्रति जो एक गुडविल है उसमें और बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो इनको रिकग्नाइज करने का हमारा ये तरीका है। तो इसी के चलते मेरा एक सवाल है, वैसे तो दो सवाल है, मैं क्रमशः पूछता हूँ कि भारतीय जो हमारा कलिनरी क्यूजीन ट्रेडिशन है, तो क्या वो भारत के क्लाइमेट के बाहर, जैसे मान लीजिए आयरलैंड का क्लाइमेट है, या मान लीजिए अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का क्लाइमेट है, या जापान का क्लाइमेट है, इन सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी आप ये एडवाइस करेंगे कि इंडियन फूड एंड culinary cuisine traditions are healthier, they will be supporting the principles of wellness, sustainability and all those things? बट डेफिनेटली डेफिनेटली देखो, हमारे आयुर्वेदा में कुलिनरी साइड पे, आयुर्वेदा तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके एक छोटा सा वर्टिकल, एक छोटा सा हिस्सा है जो खाना है। अब वो खाने में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कई बार कि हमारे अपने लोगों को भी और प्रोफेशन में भी कुकिंग के लोगों को हमारे बेसिक 6 टेस्ट का, 6 रस का पता नहीं है, वो जो कि बहुत ज़रूरी है पता होना। ये कौन से रस होते हाँ हैं? जी, ये है, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, जी, हिंदी जी, में भी। या स्वीट, स्वीट, सॉल्ट, सॉल्ट, सार, सार, बिटर, बिटर, पंजेंट, पंजेंट एस्ट्रिंजेंट, एंड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट। ये 6 जो हैं, ये नेचुरल टेस्ट है और फ्लोरा एंड फौना के, कुकिंग के बाद नहीं है। ये तुम्हें आपका जितना भी फ्लोरा फौना है आपको मिलेगा, इसकी किसी न किसी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। किसी चीज़ों के 2 भी टेस्ट हैं, किसी के 3 भी हैं, किसी के 1 भी है, जिस तरह। और जितने टेस्ट ज़्यादा है उतना वो वेलनेस और हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर फूड इंग्रेडिएंट है। आंवले को हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया है सेहत के लिए, उसमें 5 टेस्ट हैं, सॉल्ट नहीं है, बस 5 है, तभी वो बहुत हेल्दी है। और न्यूट्रिशन, और हमारा आयुर्वेद कहता है कि फूड जो है वो स्वाद होना चाहिए। वाह, स्वाद जो है बहुत ज़रूरी है, और वो स्वाद जो है वो 6 के 6 टेस्ट का बैलेंस होना चाहिए। क्या बात है। इसलिए एक यूनिवर्सल है ये यूनिवर्सल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क- आप आज अफ्रीका भी- में जोहान्सबर्ग में खाओ या टोक्यो में खाओ। अगर हमने 6 टेस्ट से बैलेंस किया हुआ खाना जी, है, जी, जी। तो वो जो है खाना यूनिवर्सल इंडियन फूड है और से यूनिवर्सल है, और वो टेस्टी होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जिस पार्ट्स वर्ल्ड के हिस्सों में, बहुत ज़्यादा में, ये 6 टेस्ट की समझ नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी 4 पे अटके हुए हैं। और एक उमामी जापानीज टेस्ट लोगों को पसंद आया है जो शुरू हुआ है, वो उमामी हमारे यहाँ डिस्क्राइब्ड है एज ए पंजेंट, बिटर एंड स्ट्रिंजेंट का कम्बिनेशन है कुछ, अलग और वो अलग आफ्टर कुकिंग है, आफ्टर फर्मेंटेशन है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल फ्लोरा फौना की, तो फर्क है दोनों चीज़। तो वो अभी भी दुनिया को नहीं पता है, तो वो बैलेंस नहीं होता। और ये चीज़ें जहाँ तक क्लाइमेट, हमारे साइंस में लिखा है कि क्लाइमेट के हिसाब से, जिस तरह हम ये सब समझते हैं कि सर्दियों में हमारे टेस्ट बर्ड्स में फ़र्क आ जाता है, बिल्कुल। उसमें स्वीटनेस ज़्यादा, स्वीट ज़्यादा लेते हैं, समर में बिटरनेस, और वो मानसून में खट्टापन, चाट पापड़ी खाते हैं। मतलब जब बॉडी की क्लाइमेट से डिमांड बदल जाती है। और भारत तो में अब तो सारे ही क्लाइमेट है। सभी क्लाइमेट है, और बड़ा बड़ा वेल डिफाइंड लिखा हुआ है हमारे ये
हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स में इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए खाना किसी भी देश में बनाएंगे तो वो खाने को हम इंडियन ही कहलाएंगे और उसके हिसाब से उसको लोकल फ्लोरा फौना के हिसाब से बनाएंगे। तो खाना इंडियन खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंडियन फूड इज ग्लोबल फूड एज हाँ जी, एब्सोल्यूट, इट इज़ ग्लोबल फूड। वंडरफुल। और फिर आप देखिए कि हमने इंडिया में हमारा खाना ग्लोबल है और हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारी साइंस ने हमको इनकरेज करती है ये कि बी वेरी क्रिएटिव विद यू, बिकॉज लोकल फ्लोरा फोना को इस्तेमाल करो। और कहीं से भी इंग्रेडिएंट आता है, ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई हमारे यहाँ इंडिया में अब कहते हैं कि हम कि बहुत इन्फ्लुएंस है बाकी डिफरेंट खानों का, डिफरेंट, कि दुनिया में लोग बहुत आए हैं, किसी भी तरीके से आए हैं। फिलोसफर्स भी आए हैं जी, पढ़ने लिखने भी आए हैं लोग, आयुर्वेदा को पढ़ने भी आए होंगे जरूर लोग यहाँ पे जो बाहर लेके गए हैं यहाँ से साइंस को। तो ऑल काइंड ऑफ पीपल बहुत आए हैं, सब कुछ लेके कोई कुछ ना कुछ है। तो खाना पीना भी लेके आए, इंग्रेडिएंट्स भी लेके आए, पर हमने उनको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। हमारा इंडियन नेस जो है वो इंडियन बरकरार है। पर हमने इंडियननेस बेकार है, हमने उनको बेकार है, उनके इंग्रेडिएंट्स को भी हमने एक्सेप्ट किया। उसकी मैं एग्जांपल ऐसी आमतौर पे दे देता हूँ, बड़ी जल्दी समझ आती है कि जैसे चाय एक इंग्रेडिएंट हमारे यहाँ हिंदुस्तान की हिस्ट्री के हिसाब से बड़ा नया इंग्रेडिएंट है, 200-250 साल पुराना है। उससे पहले ना चाय की पेड़ होता था ना पत्ती होती थी, 250 साल। पर हमको 100-125 साल लग गए उसको समझने के लिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा जो हमारा जो फर्स्ट असेंशियल ऑफ कुकिंग है, अगर खाना सीखना है बनाना और बनाना है खाना, पहला ही असेंशियल जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है, मैं अपना नहीं कुछ भी बता रहा, कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंग्रेडिएंट को समझना बहुत जरूरी है खाने में डालने से पहले। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। मंजीत जी, आपके साथ बात करते करते एक तो बहुत नई बातें भी समझ रही है और थोड़ा सा भूख भी लग रही है, क्योंकि आप जो खाने का वर्णन कर रहे हैं और जो रसों की बात आपने कही, और इसको तो मैं बहुत लंबे समय से बात कर सकता हूँ, मगर थोड़ी समय की मर्यादा है। तो बिफोर आई क्लोज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है जो कई दर्शकों के मन में भी स्वाभाविक होगी कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर पीपल हु आर रनिंग इंडियन रेस्टोरेंट्स अब्रॉड, if you could reflect on them precisely, so that our foreign audience will also get to know that these are the challenges and these are the things they have to deal with. वो सबसे बड़ा चैलेंज तो जो है वो एजुकेशन है, एजुकेशन है एंड अवेयरनेस है। तो हमारे पास ज़रूर ऐसा टेक्स्ट होने चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि कुलिनरी स्टूडेंट्स, चाहे वो इंथुजियास्ट स्टूडेंट्स हैं, जहाँ प्रोफेशनल सीखें, जहाँ रेस्टोरेंट में पढ़ के अपने आप डेवलप कर रहे हैं, वो उनको जरूर समझें और सीखें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके वो ना होने के कारण तो डिफरेंट परसेप्शंस लोगों के माइंड में आते हैं और हर कोई अपना कोई ना कोई शॉर्टकट्स और ये दोस्त रखते हैं। तो ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमको बड़ा अग्रेसिवली लेना चाहिए, अब स्लोली उस चीज़ को करना चाहिए। दूसरा है कि इंग्रेडिएंट्स हैं, और दूसरा जब एजुकेशन ही कह रहा हूँ तो बहुत ट्रेंड लोगों ने एक वहाँ शुरू नहीं किए रेस्टोरेंट पहले, पिछले अब 5-7-10 साल में फ़र्क आ रहा है बहुत, तभी उसकी खाने की अब बात भी करने लगे हैं और लेवल भी उसका बेंचमार्क जा रहा है। पहले जो बड़े इलीगल इमिग्रेंट्स और डिफरेंट हमारे जो पॉलिटिकली नेबर्स इधर उधर भी सभी इंडियन रेस्टोरेंट की चलाते थे, तो फ़र्क था। तो अभी वो चेंज तो वो अब हो रहा है। पर अब एक चैलेंज ये है कि हमको दुनिया को, लोगों को खाना समझाना बहुत ज़रूरी है, दैट वो हमको ग्लोबली कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोगों को हम बता सकें कि खाना हमारा क्या है, इंडियननेस क्या है, इंडिया की साइंस क्या है। ऑन दिस पॉइंट आई वुड से कि मान लीजिए कि आपके सम्मुख 50 भारतीय रेस्टोरेंट के मालिक बैठे हैं देश विदेश के, उनको 2 मिनट में आप क्या बताएंगे कि उन्होंने क्या करना चाहिए? जैसे आपने एक बात मुझे कही थी कि हमारे इंडियन रेस्टोरेंट ओनर्स जो है वो बेकार का मिलावटी खाना प्रस्तुत करते हैं, शुद्ध भारतीय खाना हमने देना चाहिए, क्योंकि तभी जा करके हमारी सौम्य संपदा और प्रबल हो पाएगी। तो उनको क्या कहें? हाँ, मैं उनको ये जरूर कहूँगा और वो उनको जरूर करना चाहिए। ये हम एक तो जो पुरानी कई चीज़ें जो अनस्ट्रक्चरली और बिना बेस के जो कई, जिस तरह कोई डिश का मद्रास करी है, ये है, ऐसे नाम रख दिए कई लोगों ने, तो उनको अब जो है वो सब खानों को बदलने की
उनमें हिम्मत होनी चाहिए, अपनी कन्विक्शन होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए कि हम ये बदलेंगे इसको, जिससे इंडियननेस आए और करेक्ट चीज़ आए। बिल्कुल। तो ये बहुत लोग, जब मैं ये बातें करता हूँ बहुत लोगों से, पर्टिकुलरली वेजिटेरियन साइड जो है हमारे खाने की, उसमें इवन इंडिया में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। वो लोग बदल नहीं रहे हैं डिशों को कि नहीं लोग यही खाते हैं। मैं ये मानता नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि लोग अगर ये खाते हैं, हमने ये खिलाया तो ये खाते हैं। बिल्कुल। अब हम बदलें उस चीज़ को, और हमारे हर डिश, हर खाने के पीछे स्टोरी होनी चाहिए, उसकी सोल होनी चाहिए, उसके बारे में उनको बात करें, बताएं। स्लो इफेक्ट होगा, रेवोल्यूशन मगर होगा ओवरनाइट जरूर, नहीं होगा, मगर होगा बट उसके लिए हमें कन्विक्शन जरूर चाहिए, हिम्मत चाहिए कि हमने जो बदलना है बिल्कुल। तो बदलें उसको। एकदम 100% सही बात आपने कही, क्योंकि जो भी काम करते हैं कन्विक्शन के आधार पर करना चाहिए। और इसलिए जो भी हम विश्व समुदाय को खिला रहे हैं, ग्लोबल कम्युनिटी को खिला रहे हैं, वो शुद्ध भारतीय इसलिए होना चाहिए कि वहाँ के लोग वही चाहते हैं। हम अगर भारतीय व्यंजनों में और कुछ मिलावट करके देंगे तो वो तो भारतीय नहीं रहेगा। नहीं। तो भारत की अपनी जो पहचान है कलिनरी क्यूजीन ट्रेडिशंस में, उसको बरकरार रखते हुए हमें विश्व समुदाय का दिल जीतते जीतते आगे बढ़ना है। मैं मानता हूँ यही आपका संदेश है, जो भी मैंने गैदर करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आपने इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला और कनेक्टिंग थ्रू कल्चर को एक अलग तरीके से आपने प्रस्तुत किया, क्योंकि कनेक्शन का रास्ता तो पेट से भी जाता है। तो उस दृष्टि से आज आपने एक बहुत बढ़िया जानकारी भी हमें दी, एक दृष्टि भी दी। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।